فرماتے ہیں اے پہاڑ اگر تیرے اندر تھوڑا بھی پانی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیاسے ہیں، ان کی پیاس کو بجھانے میں آ جا۔ اس پہاڑ نے چیخ کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرے پاس بھیجا ضرور ہے، لیکن جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیجئے کہ جب سے اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بچاؤ، اپنے پڑوسیوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میں نے جب سے اس آیت کریمہ کو سنا ہے میں نے رو رو کر اپنا سارا پانی ختم کر دیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج اسی نبی نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا ہے، قرآن نبی پر نازل ہوا، مگر آج اس قرآن کو پڑھ کر لوگ ہدایت عظمیٰ سے سرفراز ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ ضروری یہ ہے اپنے نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو، اپنے نبی کی شریعت کو پڑھ کے دیکھو، نبی کے یاروں نے جو زندگی بسر کی ہے وہ زندگی پڑھ کے دیکھو، ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ ہمیں جھگڑا فساد کر کے نہیں، آپسی محبت بھائی چارہ پیدا کر کے رہنا چاہیے، آپسی جو دشمنی ہو اسے ختم کر کے رہنا چاہیے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج میں بلایا تھا وہ شب جو ہے 27ویں شب رجب المرجب کی تھی، تو خاص وقت میں جو ملاقات میں خاص باتیں ہوئی تھی ان خاص باتوں میں سے یہ خاص بات تھی کہ اے محمد آپ کی امت میں جو دو دلوں کو ملائے گا جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روکے گی۔ اس کا برعکس بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جذب میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے محمد آپ کی امت میں جو دو دلوں کو ملائے گا جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، لیکن اسی کا برعکس یہ بھی ہے جو دو دلوں میں نفاق پیدا، جو دو دلوں میں جو ہے درار پیدا کرے گا، دشمنی پیدا کرے گا، جھگڑا پیدا کرے گا، آپسی محبت بھائی چارہ ختم کرے گا، اسے جہنم میں بھی جانے سے کوئی عمل نہیں روک سکتا ہے۔ یارو آپسی محبت بھائی چارہ پیدا کرو، یہ جھگڑے فساد کب تک ہوتے رہیں گے؟ یہ بھائی بھائی سے دشمنی، باپ بیٹے سے دشمنی، ماں بیٹی سے دشمنی، بھائی بھائی کا دشمن بنا نظر آ رہا ہے۔ ذرا قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیے ہوتے، نبی کی شریعت کو پڑھ کے دیکھ لیے ہوتے، اگر نبی کی شریعت پر عمل پیرا نظر آتے تو آج بھائی چارہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتا۔ یارو ذرا اپنی زندگیوں کو مطالعہ کر کے دیکھو نبی نے ہمیں کیا بتایا تھا اور ہم کن باتوں پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن ہم سے کیا بتا رہا ہے؟ جو قرآن نازل ہوا تھا ہماری ہدایت کے لیے آج ہم نے اسے سجا کر رکھ دیا ہے، اسے طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا ہے، اسے صرف جہیزوں میں دینے کا ایک سامان بنا کر رکھ دیا ہے، اسے صرف الماریوں کی زینت بنا بیٹھے ہیں۔ یارو اس قرآن کو کبھی پڑھ کے دیکھ لیا کرو، اس قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیا کرو۔ قرآن کی عظمت کیا ہے سنو، قرآن کی عظمت پر اگر تو گفتگو کی جائے یہ تمام مراتیں ختم ہو سکتی ہیں، مگر جو عظمت قرآن کبھی نہیں مکمل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، ایک شخص ہے مدینہ المنورہ میں رہنے والا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، اسی علاقے کے ایک بہت بڑے عالم دین نے اسے خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص جنت کی کیاریوں میں ٹہر رہا ہے، جنت کی کیاریوں میں گھوم رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم دین اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کی شریک حیات سے پوچھتے ہیں اے بیوی بتا تو صحیح تیرا شوہر کون سا نیک عمل کرتا تھا، کون سی ایسی جو ہے نمازیں پڑھا کرتا تھا، کون سا ایسا جو ہے کام کرتا تھا، کہا ماجرا کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو کہا وجہ یہ ہے کہ وہ سے میں نے آج خواب میں دیکھا ہے جنت کی کیاریوں میں ٹہلتے ہوئے۔ کہا میرا شوہر تو نمازیں بھی نہیں پڑھتا تھا مکمل طور سے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا، عالم دین بھی نہیں تھا، حافظ قرآن بھی نہیں تھا، آخر وہ کون سا ایسا عمل ہے جو اسے جنت کی کیاریوں تک پہنچا دیتا ہے؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب رات کی تاریکی میں لوگ اپنے بستروں پر آرام سے سو جایا کرتے تھے، رات کا سناٹا چھا جاتا تھا، وہ قرآن اٹھاتا تھا اور قرآن اٹھانے کے بعد پڑھا نہیں تھا، رب سے رو رو کر عرض کرتا تھا اے رب یا رب العالمین میں نے تیرے قرآن کو پڑھا نہیں ہے،
मैं ये जानता भी नहीं ये लिखा क्या है, इसमें सही जो है लिखा क्या है, इसमें है क्या, लेकिन सिर्फ ये नजर आ रहा है ये कुछ लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है ये हक लिखा है। हर सदर पर उंगली फेरता, या रब ये भी सही है, हर जो है इस पर फेरता, या रब ये भी सही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस बंदे की अदा इतनी पसंद आई कि मरने के बाद उसे जन्नतुल फिरदौस जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है। यारो अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने ईमान को ईमान में मजबूती पैदा करो, अपने ईमान को एक कमजोर एक जो है एक धागे की पिसल मत बनाओ जो कहीं से पकड़ के तोड़ दिया जाए। ईमान को मजबूत रखो, कुरान पढ़ के देखो। कुरान हमें यह सबक देता है, आपके पड़ोस में अगर कोई मेरा गैर मुस्लिम भाई रहता है, अगर वो परेशान हाल है उसकी परेशानी में हाथ बटाने के लिए जाओ, अगर वो बीमार है उसकी इयादत के लिए जाओ, अगर वो किसी तकलीफ में मुब्तला है उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उसके काम आओ। आज हमारा हाल ये है, अगर हमारे भाई ने एक बालिश अगर हमारी मेड़ को काट लिया है तो हम उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना कमजोर यारो हमारा ईमान कब से हो गया है, इतना कमजोर ईमान इसलिए इस वजह ये इससे हुआ है कि हमने नबी की शरीयत को बालाए ताक रख दिया है, हमने कुरान पर अमल करना छोड़ दिया है, हमने नबी की शरीयत को पढ़ना बंद कर दिया है। आओ जरा सुनो कुरान की अजमत क्या है। कुरान को उठाकर देख लिया करो। कुरान वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस जगह पर कुरान पढ़ा जाता है वो जगह तमाम बलाओं से महफूज रहा करती है। आज हमारे घरों में बलाएं भर रही है, मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही है, परेशानियों से हम छुटकारा नहीं पा रहे। यही वजह है आज हमने कुरान जैसी अजीम चीज को हमने छोड़ रखा है, उसको सिर्फ अलमारियों की जीनत बना कर रख दिया है। आओ उसी कुरान को पढ़ के देखो, फिर देखो सोच भी नहीं सकते बरकतें आ कहां से रही है, रहमतों की बारिश हो कहां से रही है, क्योंकि जहां कुरान पढ़ा जाता है रहमत और नूर की बारिशें हुआ करती हैं। यारो कुरान पढ़ो, कुरान वो अजीम किताब है, कुरान वो जो है अजीम किताब है जिसको पढ़कर लोगों में इतनी बड़ी हिदायत पर जो है इतनी हिदायत पा गए, इतनी हिदायत पाए कि आज उनके नाम सारी जो है पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत रच बस गई है। एक आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करके रुखसत कर जाऊंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मदीनतुल मुनव्वरा का एक लड़का है, यतीम लड़का है, जिसने कभी अपने बाप को नहीं देखा था। वो अपने माँ के शिकम में था, उसका बाप इंतकाल कर गया था। इतना गुर्बत का आलम था, इतना गुर्बत का आलम था कि उसकी माँ के तन पे जो कपड़े थे वो भी फट चुके थे। लेकिन बेटा जब अक्ल शूर में की जिंदगी दहलीज पर पहुंचता है, जब बेटे की उम्र बढ़ जाती है तो उसे तमीज आती है सही क्या है गलत क्या है। जब उसने अपनी माँ के जिस्म पर फटे पुराने कपड़े देखे जिससे उसका बदन झलक रहा था, अल्लाह अकबर, उसने अपनी माँ से रोते हुए कहा, अम्मी जान आप अच्छे कपड़े क्यों नहीं लेती हैं? कहा बेटा पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, दौलत होती तो मैं अच्छा कपड़ा ले लेती। कहा जा रहा हूँ चाचा से कह दूंगा आपके भाई का इंतकाल हो गया था, आपकी जो है भाभी का कोई सहारा नहीं, छोटा सा भतीजा हो सकता उसे रहम आ जाए और वो मुझे कोई कपड़ा दे दे या चादर दे दे जिससे आपके तन को ढक दूं। अल्लाह अकबर। जब वो भतीजा कहता है उसकी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। कहा बेटा तुम्हारा चचा बहुत कठोर दिल का है, बहुत कट्टर है, बहुत सख्त है, वो मानेगा नहीं, और अगर तुम जिद करते हो तो तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम जा सकते हो, देख लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। जब वो भतीजा अपने चचा की दहलीज पर पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज आती कौन? कहा आपका भतीजा आया है। दरवाजे को खोला जाता है, बेटा मिन्नत और समाजत करके अपने चचा से कहता है, चचा जान मेरी अम्मी जान के कपड़े फट गए, कोई चादर हो तो दे दो जिससे अपने माँ के जिस्म को ढक ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब उसने इस बात को कहा उसने ठोकर हाथ से मारा और कहा जा तेरे यहाँ तेरा यहाँ कोई सरमाया नहीं है, तेरी कोई दौलत नहीं है, तेरा यहाँ कोई माल नहीं है, तेरा यहाँ कोई हक नहीं है। अल्लाह अकबर। जब उसने इस बात को कहा वो रोता चिल्लाता जा रहा था अपनी माँ के पास। एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है, सहाबी रसूल से जब मुलाकात हुई कहा बेटा रो
रोने का रीजन क्या है, रो क्यों रहे हो? मोहम्मद अरबी के जमाने में तुम रो रहे हो, नबी तो यतीमों का सहारा बन। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तस्करा करने लगे, कहा कौन है मोहम्मद? जो कहा मेरे उस सहाबी रसूल ने कहा जिसको कहीं से नहीं मिलता है वो मोहम्मद के दर अब वो रोता चिल्लाता जो बच्चा जा रहा था, उसकी सिस्तियां थमने लगी और वो खामोश होकर बहुत ही प्यार के साथ सुनने लगा। कहा अच्छा बताओ, जरा बताओ तो सही वो मोहम्मद है कौन? कहा चला जा बेटा, वो मोहम्मद मदीने की गलियों में जो है मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा होंगे। कहा माँ का बड़ा वफादार बेटा था, आज हम जैसे नहीं था, जो कोई कहते तो हम दौड़ के कुत्तों की तरह चले जाया करते हैं। यारो अपने वालिदैन के फरमा बरदार बनो। वालिदैन वो हैं जिनकी वजह से अगर मोहब्बत की नजरों से हम उन्हें देख ले तो अल्लाह हज मकबूल का अब वो फरमा बरदार था वालिदा का, वो पहुंचा, कहा मैं अपनी माँ के पास जाके ये सारा माजरा बताऊंगा, अगर मेरी माँ इजाजत देती है तो मैं चला जाऊंगा मोहम्मद के पास और चादर हासिल कर लूंगा। अल्लाह अकबर। माँ के पास गया, कहने लगा अम्मी जान मुझे एक शख्स ने बताया है एक मोहम्मद रहते हैं मस्जिद नबवी में, उनका पता। कहा बेटा मोहम्मद उनके पास मत जाना, वो तुम्हें अपना दीन सिखा देंगे, वो तुम्हें अपना मजहब सिखा देंगे। कहा अम्मी जान कुछ भी हो मगर मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। कहा बेटा अगर तू जिद कर रहा जाना चाहता है तो चला जा, मगर मेरी एक शर्त है, उनके दीन को कबूल मत करना, वो जादूगर है, उनके दीन को मत कबूल करना। कहा अम्मी जान मैं कसम खाता हूं उनके दीन को कबूल नहीं करूंगा, मगर ये भी गवारा नहीं है कि तेरा जिस्म खुला रहे और बेटा जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। अब वो मोहम्मद अरबी की बारगाह में पहुंचते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आवाज देता मोहम्मद, अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने निगाह रहमत को जब फेरा तो उसकी दिल की कैफियत बदलने लगी, लेकिन माँ से किया हुआ वादा उसे याद था। अल्लाहु अकबर। उसने कहा मोहम्मद मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी माँ की जो है जिस्म के कपड़े फट चुके हैं, बिल्कुल उनके जिस्म जो है उनका जिस्म दिख रहा है, मुझे ये गवारा नहीं था, अगर आपके पास कोई चादर हो तो मुझे अता फरमा दे। मेरे आका ने अपनी काली जो है चादर उतारने के बाद फरमाया मोहम्मद इसीलिए आया है, अगर कोई बेसहारा हो तो उसके लिए सहारा, अगर कोई बेसहारा हो जाए। तभी तो इमामुल शाह कहते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने वाला है सच्चा। क्या खबर कितने तारे खिले। ये हैं हजरत मौलाना कारी मोइनुद्दीन साहब शाहलारी जो ब्लॉक रौसा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग करते हैं। अब चादर रहमत को ले जाकर अपनी मां के जिस्म आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शकील अहमद उर्दू स्पीच के जरिए से नातिया मुशायरा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा जरा बता तो सही वो कितना हमदर्द है, वो कितना मसीहा है जिसने बगैर कुछ किए हुए तुझे चादर जलसा इस्लाह मुआशरा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना मेहरबान है, मैं भी उसके चेहरे को देखना चाहती हूँ, मैं भी उससे मुलाकात करना चाहती हूँ। अब वो दीवाने मुस्तफ़ा चल रहा है और उस दीवाने मुस्तफ़ा की माँ चल रही है, उसकी दिल की कैफियत तो बदल ही चुकी थी। जब नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, नबी के चेहरे पर दुआ पर नजर पड़ती है, नबी के चेहरे अनवर पर नजर पड़ती है, बगैर कुछ कहे हुए नबी से अर्ज करता है या रसूल अल्लाह अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कलमा पढ़ाकर मुशर्रफ का इस्लाम। माशाअल्लाह। ये थे हजरत मौलाना कारी मोइनुद्दीन साहब शाहलारी जो ब्लॉक रौसा और डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग करते हैं। माशाअल्लाह बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ। सीरतुन्नबी इस्लाह मुआशरा का आगाज़ हुआ, बहुत ही शानदार हुआ जलसा सीरतुन्नबी इस्लाह मुआशरा। उसकी शादी में हाथ बंटवाएं, उसका सहारा बने, ताकि अगर तुम्हारा सहारा उसका बनोगे तो अल्लाह तुम्हारा सहारा तो है ही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर रहम करता है। तो अल्लाह की मेहरबानियां बेपनाह है, उसकी रहमतें बेशुमार है, उसकी बरकतें बेपनाह है। अगर चाहते हैं कि हम पर नाजिल करे मौला तो मौला के फरमा बरदार बन जाओ, नबी के
के सच्चे आशिक बन जाओ, अपने सीनों को मुस्तफ़ा का मदीना बना लो, नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में बस जो है जला लो। ये मोहब्बत का चिराग अगर आज हमने रोशन कर लिया तो ये सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा, कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, मीज़ान अमल पे भी साथ देगा, पुलसिरात पे साथ देगा। कब? जब हम उस नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खिताब फरमा रहे थे हज़रत मौलाना कारी मोइनुद्दीन साहब चाहलारी रौसा। माशाअल्लाह, मासी आंखों में चमचमों का